Good morning, everyone. Namaste, all of you. So today we're going to do a few asanas which are very, very good for your gas and bloating. So today we're going to start with the standing asanas. So let's all stand up. We'll do a good warm up first before we start. So let's stand up, everyone. Now, keeping a 1 foot distance between your feet, interlock your fingers, take your arms up and bend towards your right side. Stay here for 1, 2, 3, 4, 5. Come back in the center. Let's move towards the left side. 1, 2, 3, 4, 5. Come back in the center. Let's move towards the right side one more time. 1, 2, 3, 4, 5. Come back in the center. Let's move towards the left. 1, 2, 3, 4, and 5. Coming back in the center. Relax and release. Give me a 1 minute. I think I need to adjust the camera a little. Yeah. Okay. So sorry. Okay. Let's start, everyone. Comfortable distance between your feet. Interlock your fingers above your head. And now let's twist towards the right side like this and stay there. Stay there for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back in the center. Let's move towards the other side. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Come back, relax, and release. Now, sit in a Malasana. Stay here, everyone. Now, I would request everyone to go a little closer to the wall because we're going to take a wall as a little support today. We're going to do few things which with the help of the wall. So we'll do the side stretches also with the help of the wall. Okay, come back up, everyone. Now placing your palm on the wall. You're placing the right palm on the wall. Like this, you have to place the palm on the wall. And now let's go for the side stretch like this and hold it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coming back in the center. Let's do it for one more time. Stretch and stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. Now let's change your hand. Let's go. Push and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coming back in the center. Let's go for one more time. Stretch and stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and coming back in the center. Relax and release. One more time, we're going to sit in a Malasana. I hope you all are able to see me properly and you all are able to hear me properly. If you're not able to hear or see or something, you can just put a message in the chat box. Now, today we're going to start with Malasana walk.
Why we are doing Malasana walk? Because when you walk in the Malasana, it strengthens your abdominal muscles and it helps to release the gas and bloating from the abdominal area. So how are we going to do? You can take the support of your palm और इस तरह से सपोर्ट लेके आपको आगे की तरफ वॉक करना है धीरे धीरे आराम से. And then let's walk behind. We have to walk behind. धीरे से वॉक करना है पीछे की तरफ एंड स्टे. मालासना में वापस आके बैठ जाना है. लेट्स गो फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ वॉक. धीरे से आपको चलना है. आप देखो मुझे मैं कैसे चल रही हूँ. वेरी स्लोली स्लोली आगे आगे चलना है. सपोर्ट लेके चलना है. एंड अगेन गो बैक. धीरे से पीछे जाएंगे एवरीवन. गो स्लोली स्लोली बिहाइंड एंड रिलैक्स. तो जब आप ये कर रहे होंगे तब आपको थोड़ा सा प्रेशर भी फील होता है ऑन योर थाइज, ऑन योर नीज, बट ये सिर्फ टेम्पररी है, सो डोंट वरी. लेट्स गो फॉर द थर्ड एंड लास्ट राउंड ऑफ मालासना वॉक. धीरे धीरे वॉक करेंगे. So this Malasana walk is very, very good for your bloating, your constipation, your gas. Let's go. And sit. Now, आपके लेफ्ट पाम को इस तरह से फ्लोर पे रखते हुए राइट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करना है एंड होल्ड करना है. होल्ड इट फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coming back in the center. Let's change your hand. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back in the center. एक बार और करेंगे अच्छे से. Stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coming back in the center. Let's go. One more time. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Come back in the center and be there in the Malasana. So whenever you feel constipated or bloating, just sit in a Malasana for 2 to 3 minutes. Then take a rest, again sit. So for 10 minutes, no, you can just do a Malasana, sit normally in a butterfly, again Malasana, sit normally in a butterfly. So this is the first very asana, which is very, very helpful for your bloating and gas relief. Now from here, everyone, placing your palm on the floor, let's go for a forward fold. And slowly keeping your hands on your waist, come up and relax. Now we're going to do few stretches to open up your shoulders. So दोनों legs के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे हिप से ज्यादा. अब इस तरह से बॉडी को राइट तरफ मूव करवाना है एंड दोनों हाथों को स्ट्रेच करवाना है ऊपर. इस तरह से होल्ड करके रखेंगे. आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं राइट की तरफ मुड़ रही हूं तो मैंने मेरे लेफ्ट हील को ऊपर कर दिया है जस्ट फॉर अ कंफर्ट. नाउ कमिंग बैक, लेट्स गो टुवर्ड्स द अदर साइड. कमिंग बैक, लेट्स गो टुवर्ड्स द राइट साइड अगेन. अच्छे से शोल्डर्स ओपन करना है आपको. होल्ड करना है प्रॉपर्ली. Coming back, change.
Come back for the last time. Go towards your right side. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coming back. Change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. कम बैक इन द सेंटर. अब दोनों लेग्स के बीच में हमने 2.5 फुट जितना डिस्टेंस किया है. दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करना है. अब धीरे से हम आएंगे फॉरवर्ड बेंड में. धीरे से फॉरवर्ड बेंड में आके ड्रॉप करना है. हैंड्स को, हेड को, सबको टुवर्ड्स द फ्लोर. स्टे हियर एवरीवन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and slowly coming back up, and 20. Relax and release. एक बार और करेंगे, बट दिस टाइम दोनों हाथों को आपके एल्बोज को होल्ड करेंगे. ऑपोजिट एल्बोज को होल्ड करने के बाद वी विल गो डाउन. लेट्स गो डाउन. अब एल्बो को पुश करना है टुवर्ड्स योर टोज एंड स्टे हियर. स्टे हियर फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and slowly go up, and 20. Relax and release. Now from here everyone, one last time we're going to sit again in a Malasana. So I hope you all have understood the importance of Malasana. Now come in a cat and cow position everyone. So दोनों पाम्स को आपको रखना है फ्लोर पे, शोल्डर लेवल पे. सो आप देखोगे पाम्स आपके और आपके शोल्डर्स जो है वो सेम लाइन में है. आपके नीज और आपके हिप जो है वो सेम लाइन में है. अब यहाँ से मुझे आर्च करते हुए निकलना है ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ देखना है, इनहेल करना है. एंड नाउ राउंड योर बैक, गो इन. Arch your back. Round your back. If you want, you can just close your eyes and just enjoy this stretch. कितनी बार ऐसे होता है कि जब हम आंख बंद रखते हैं तो हमें ज्यादा डीपली हमारी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग होती है. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन to close your eyes and do the stretch, because now we all know how are we supposed to do the cat and cow stretch. So just close your eyes and move your spine. Round, arch, feel the spinal movement. Now from here everyone, we're going to go in a child pose. तो आपके दोनों नीज को इकट्ठे कर देना है, टुगेदर कर देना है. हिप को पीछे पुश करते हुए हाथों को आगे एक्सटेंड करना है. रेस्ट इन अ चाइल्ड पोज. So here we are taking child pose as a asana, not as a resting time.
come back, and now placing your palm on the floor, let's go for a downward dog position, which is again very very helpful to release the bloating and gas. So दोनों toes को turn करना है आपको, and lift your knees up. Hip will move towards the sky, head will move inward, and your drishti, especially your eyes, will look towards your navel. Stay here, everyone. Stay for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Come back and placing your palm, placing your knees, and now resting in the child pose. So this time you will going to take your arms behind and hold your heels and stay there. Staying for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Come back up, relax, and release. Now the next asana for your gas and bloating is Bharadwajasana. So everyone just see how are we doing it, because थोड़ा सा ये टेक्निकल है तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ देखना रहेगा. आपको राइट फुट को बेंड करके इस तरह से साइड में रख देना है. तो आपका जो राइट हील्स जो है और आपके टोस जो है वो आपके हिप के साइड में है. अब आपको लेफ्ट पैर को उठा के अर्ध पद्मासन यानी कि इस तरह से रख देना है. नाउ आपका जो अब मैंने राइट लेग को मेरे नी को बेंड करके रखा है, सो माय राइट हैंड विल गो ऑन माय लेफ्ट. ओके, और मेरा जो लेफ्ट हाथ है वो ऐसे ट्विस्ट करके आएगा और स्टे करना है हमें. सो ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव. सो आपने आपके राइट पैर को बेंड करके रख दिया है, लेफ्ट पैर जो है वो अर्ध पद्मासन में आ रहा है. राइट हैंड, बिकॉज इट्स अ ट्विस्टिंग, we are taking the right hand on the knee and twist. Hold it here, everyone. Hold it for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and slowly come back in the center. Now ऐसे ही रुकना है, थोड़ा सा पैरों को अच्छे से रिलैक्स होने देना है. अब धीरे से पैर को आपके सिर्फ लेफ्ट वाले पैर को इस तरह से सीधा करना है, राइट वाला पैर हमारा जो है वो वैसे ही रहेगा. अब दोनों हाथों को रेस करना है एंड फॉरवर्ड बेंड में जाना है. होल्ड एंड स्टे. स्टे फॉर 1, 2, 3. हमें कंप्लीटली डाउन नहीं करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and slowly coming back up, and 20. Now आपके राइट लेग को भी सीधा कर देना है, थोड़ा सा दोनों लेग्स को रिलीज कर देना है. थोड़ा सा आपको चाहिए तो मूवमेंट करिए पैरों के बीच में. ओके, नाउ आपके लेफ्ट पैर को इस तरह से जाने देना है आपके लेफ्ट हिप के पास में, सेम साइड में. अब जो राइट वाला पैर है उसको पहले बेंड करा, बेंड करने के बाद हमने उसको अर्ध पद्मासन में लेना है इस तरह से. अब दोनों हाथों को रेस किया
अब हम कर रहे हैं, हमारा लेफ्ट जो लेग है वो बेंड है, इसके लिए मेरा लेफ्ट हाथ जाएगा मेरे राइट पे, और लेफ्ट जो मेरा राइट हाथ है वो पीछे से ट्विस्ट करके आएगा, एंड होल्ड इट हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एंड स्लोली कमिंग बैक इन द सेंटर। थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। सो दिस आसन इज अ ट्विस्टिंग आसना, बट ये थोड़ा सा एडवांस है कंपेयर टू हम जो करते हैं अर्ध मस्तेंद्रिय आसना, अर्ध मरीचिका आसना, जो हम जनरली हमारे योगा सेशंस में लेते हैं। ये एक स्टेप उससे थोड़ा फॉरवर्ड है। चलिए, अभी राइट लेग को आपके सामने स्ट्रेट कर देना है, दोनों हाथों को ऊपर रेस करते हुए, राइट टोस को पकड़ते हुए स्ट्रेच एंड स्टे फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and slowly coming back 20, रिलैक्स एंड रिलीज। अब धीरे से दूसरे पैर को भी सीधा कर देंगे, दोनों लेग्स को थोड़ा सा हम मूवमेंट में रखेंगे। ओके, नाउ दोनों लेग्स को क्रॉस कर देना है इस तरह से, एंड लेग्स फोल्ड करके हमें बैठना है। नाउ अब हम जाएंगे थोड़ा सा लेटरल बेंड के लिए। तो लेफ्ट पाम को फ्लोर पे रखते हुए राइट हाथ को ऊपर से ले जाना है, और अब चेस्ट को जो है पुश करना है टूवर्ड्स द स्काई, एंड स्टे फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब एवरीवन राइट पाम को भी इस तरह से लेफ्ट की तरफ ले जाना है, एंड होल्ड इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। नाउ दोनों हाथों को वहां पे ही रहने देना है, वॉक करते हुए सेंटर में ले आना है, एंड होल्ड इट हियर इन द सेंटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहां से हमें दोनों हाथों को वॉक करवाते हुए ले जाना है हमारे लेफ्ट की तरफ। सो हम अपने दोनों हाथों को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, एंड होल्ड इट हियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। Now everybody, let your right hand be there only. लेफ्ट हैंड को लेटरल साइडवेज में स्ट्रेच करना है, एंड होल्ड इट फॉर 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Come back in the center, relax and release. Now everyone will going to lie down on the stomach. We're going to do few asanas which will help you to release your bloating and your gas. So let's lie down on your back everyone. बैक पे सो जाना है, सॉरी आपके स्टमक पे सो जाना है आप सबको. नाउ फीट टुगेदर, हील्स टुगेदर, नीज टुगेदर. दोनों हाथों को आपके चेस्ट के पास में रखना है, एल्बोस को इन करना है. नाउ द फर्स्ट आसना वी आर गोइंग फॉर भुजंग आसना. सो इनहेल करते हुए सिर्फ नेवल तक ऊपर आना है एंड होल्ड इट हियर. शोल्डर्स को कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ देना है, ड्रॉप करना है शोल्डर्स को. अगर आप थक रहे हो तो आप नीचे जा सकते हो, बट दोज हु रियली कैन डू इट, ट्राई टू बी इन द आसना फॉर अ लॉन्गर टाइम. नाउ स्लोली बैक, relax and release. One more time we're going to do भुजंग आसना. दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखना है आपको. सेम जैसे हमने अभी किया था सेम करेंगे. इनहेल करते हुए अप एंड होल्ड. Hold it here everyone and slowly down. Make a pillow of your hand and rest. Now the next asana for today is धनुरासना. सो आपके दोनों नीज को इस तरह से आपको बेंड कर देना है. अब दोनों हाथों से आपके एंकल को इस तरह से पकड़ना है, बट अगर आपको लग रहा है आप नहीं पकड़ सक रहे हो तो टोस भी पकड़ सकते हो आप. और अगर आपको लग रहा है टोस भी नहीं आपके हाथ में आ रहा है तो आप बेल्ट का या योगा बेल्ट या दुपट्टे को यूज कर सकते हो. तो यहाँ से हमें सेम वे इनहेल करके लिफ्ट करना है चेस्ट को ऊपर, और इस बार हमें थाइस को भी ऊपर ले जाना है. सो इनहेल करते हुए लेट्स गो. ब्रीदिंग करना है, डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ. Now slowly come back. Make a pillow of your hand and rest. Now let's go for one more round. धनुरासना. दोनों नीज को बेंड कर देना है आपको. एंकल्स को होल्ड करना है एंड inhaling lift yourself up and keep breathing. आप ब्रीदिंग करोगे तो आपको ये इजी लगेगा होल्ड करना, बट अगर आप ब्रेथ को होल्ड करके रख दोगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो होल्ड इट. Slowly relax and make a pillow of your hand and rest. Now from here
प्लेसिंग योर पाम ऑन द फ्लोर, थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हुए इस तरह से ऊपर आ जाना है एंड कम इन अ कैट एंड काउ पोजीशन। नाउ एक बार थोड़ा सा कैट एंड काउ स्ट्रेच लेंगे, बिकॉज जब हम धनुरासना और भुजंगासन करते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन में स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो हम उसे रिलीज करेंगे धीरे से। वेरी स्लोली रिलीज। अब धीरे से हमें क्या करना है, वी विल बी गोइंग टू गो फॉर अ उत्तान शिशोषणा। तो हमें क्या करना है, आप एवरीवन पहले सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, हमें अपने हिप को मूव नहीं करवाना है, हिप और नी सेम लाइन में ही रहेंगे, मुझे सिर्फ मेरे हाथों से आगे वॉक करना है। एंड अब मेरे चेस्ट एंड चिन को मुझे ले जाना है फ्लोर की तरफ इस तरह से। सपोज आप अगर यहाँ पे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे होल्ड कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप सब नीचे पहुंच पाओ। सो वेर एवर यू आर, होल्ड इट। नाउ स्लोली कमिंग बैक, दोनों हाथों को वापस ले आना है जहां पे थे, एंड नाउ वी विल रेस्ट इन अ चाइल्ड पोज। सो दोनों हाथों को आगे स्प्रेड करना है, एक्सटेंड करना है एंड रेस्ट इन अ चाइल्ड पोज। नाउ स्लोली एंड जेंटली कम बैक एंड सिट इन अ वज्रासना। हमें क्या करना है, वज्रासना में बैठ जाना है, कंफर्टेबल हो जाएंगे थोड़ा सा वज्रासना में बैठने के लिए। दोनों हाथों को आपके नीज पे रखना है, धीरे से आपकी आईज को क्लोज करना है। अब नाउ दोज हु कैन ट्राई विथ मी, आप ट्राई कीजिए, हमें क्या करना है, जो हमने पहले किया था भारद्वाज आसन के लिए। सो ये देखिए, राइट पैर को, राइट हील को मैंने बाहर निकाल दिया, यहां से मैंने लेफ्ट हील को भी बाहर निकाल के मैं कंप्लीटली बैठ गई हूँ अपने हिप्स पे नीचे। तो मेरे दोनों जो पैर है वो बाहर की तरफ है और मैं कंफर्टेबली बैठ गई हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये कंफर्टेबल नहीं है तो बी देयर इन द वज्रासना। नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू डू सम नेक एक्सरसाइजेस। सो राइट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करना है एंड होल्ड योर लेफ्ट ईयर, pull it towards your right side, stay there. Come back in the center, let's change. Come back in the center. अब दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए, चिन के नीचे रखते हुए ऊपर पुश करना है चिन को टुवर्ड्स द स्काई। नाउ कमिंग बैक, दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखते हुए
पुश करना है हेड को, चिन को टुवर्ड्स योर नेक, टुवर्ड्स योर चेस्ट. Now come back in the center, relax and release. Now everyone, we will lying down on the back. So lie down on your back everyone. अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर करना है आपको. अब देखिए राइट पैर को है वो ऐसे रैप कर दीजिए लेफ्ट के ऊपर. सो ये जो राइट पैर है वो इस तरह से ऊपर जा रहा है. अगर आप ऐसे कर रहे हो कोई बात नहीं, अगर आप पूरा रैप कर पा रहे हो वेल एंड गुड. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने राइट पैर को ऊपर किया है, इसके लिए हमारी बॉडी जाएगी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. अब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे एंड स्टे करेंगे. होल्ड करेंगे यहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and slowly come back in the center and relax. अब हम चेंज करेंगे लेग को. अब हमारा लेफ्ट लेग जो है वो ऊपर से जाएगा रैप करते हुए. वी विल गो टूवर्ड्स द राइट साइड एंड स्टे. स्टे फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and slowly come back in the center. Relax and release. दोनों लेग्स को धीरे से स्ट्रेच कर देंगे. नाउ बेंड बोथ योर नीज. और अब हम करेंगे सेतुबंद आसना विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर आईबीएस एज वेल एज एनी स्टमक रिलेटेड इश्यूज. सो दोनों हाथों से एंकल पकड़ लेना है आपको. अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो एंकल्स तो दोनों हाथों को फ्लोर पे रखोगे तो भी चलेगा. सो होल्ड योर एंकल्स एंड लिफ्ट योर हिप अप. स्टे देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly come back and stretch out your legs. Now the next asana for today is पवन मुक्तासना. सो आपको राइट नी को बेंड करना है एंड हक करना है. वी आर डूइंग एक पद पवन मुक्तासना. वी आर डूइंग सिंगल लेग पवन मुक्तासना. सो होल्ड इट हियर. Now relax and stretch out your right leg. Now bend your left knee and hug your left knee. Now relax and release. Now we're going to go for Pavan Muktasana with both the legs. So bend both your knees and hug your knees.
Now bring your chin towards your knees. Now slowly keep your head on the floor and stretch out your legs. नाउ दोनों हाथों को शोल्डर लेवल रखना है आप सबको, दोनों नीज को बेंड करते हुए। नाउ वी विल गो फॉर जठरा परिवर्तनासना। सो दोनों नीज को जाने देना है हमारे राइट की तरफ एंड स्टे। नाउ कम बैक इन द सेंटर एंड लेट्स गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। Come back in the center and stretch out your legs. Now, everyone, if you have a wall uh, in your room or in your empty wall, I would suggest everyone to do this asana for today with the wall. So, हम क्या करेंगे? मैट को जो है वो इस तरह से वॉल के यहाँ पे ले जाएंगे। अब हमें क्या करना है? इस तरह से बैठ जाना है और अब हमें थोड़ा सा पूरा कंप्लीटली वॉल के पास जाके बैठना है एक साइड से। ठीक है, अब मुझे सपोर्ट लेना है हाथों का एंड मेरे दोनों पैरों को इस तरह से वॉल पे ले जाना है और मेरे जो हिप है वो मेरे टच है ऑन द वॉल और मेरे लेग्स जो है वो भी है ऑन द वॉल। अब दोनों हाथों को आप धीरे से आपके साइड में कीजिए। दिस इज कॉल्ड विपरीत करनी विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव। अब आप यहाँ पे धीरे से आंखों को बंद कर सकते हैं। जो हम शवासन करते हैं आज वही शवासन हम कर रहे हैं बट हम लेग्स को ऊपर कर रहे हैं ऑन द वॉल। अगर आपके पास एम्प्टी वॉल नहीं है तो अगर बेड भी है अगर आपके पास तो आप बेड पे लेट के भी ये सेम चीज कर सकते हो। एंड नाउ जस्ट क्लोज योर आईज, स्टे हियर एंड फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। नाउ दोनों नीज को इस तरह से बेंड करते हुए ले आएंगे बद्ध कोणासना यानी कि बटरफ्लाई के लिए। दोनों हाथों से नी को पुश करेंगे टुवर्ड्स द वॉल एंड स्टे। एक बार पुश करने के बाद आप दोनों हाथों को रिलीज भी कर सकते हो एंड स्टे हियर।
नाउ धीरे से दोनों नीज को टुगेदर करना है। आपके राइट साइड में आपको टर्न करना है इस तरह से। एंड आपके पाम के सपोर्ट से हमें बैठ जाना है विद द क्रॉस लेग्स। अब दोनों हाथों को आपके नीज पे रखते हुए दोनों आंखों को क्लोज करना है। एंड नाउ वी विल गो फॉर अ ब्रीदिंग। सो सबसे फर्स्ट हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सो राइट पाम को आपके एब्डोमेन पे रख दीजिए और अब आपको पर्पसली फुलाना है। जैसे हम बलून में कैसे एयर फुगाते हैं, वैसे आपको पर्पसली जैसे बलून को फुगा रहे हैं वैसे स्टमक को फुलाना है आपके। एंड जैसे बलून से हवा निकलती है वैसे एयर को निकलने दीजिए आपके स्टमक से। लेट्स गो एवरीवन। Now slowly place your palm on your knees and breathe normally. Now the second pranayama for today is Brahmari pranayama. So हमें inhale करना है, एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड करना है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कैसे करेंगे। इनहेल करेंगे, सो आप इसके लिए और इफेक्टिव करने के लिए हम सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे। तो दोनों ईयर्स को जो है वो आपके सॉरी दोनों थंब को आपके ईयर्स में कर देना है इस तरह से। आपके पॉइंटर फिंगर जो है वो आपके आईब्रोज के ऊपर रहेगी। आपकी मिडिल फिंगर जो है, टॉल फिंगर जो है वो आपके आंखों के ऊपर, रिंग फिंगर, और आपकी जो लास्ट फिंगर है वो फॉलो करेगी इस तरह से। नाउ टेक अ डीप इनहेलेशन एवरीवन।
Mm. Mm. Now slowly and gently place both your palm on your knees and feel the vibrations all over your head, all over your face. Now everyone, before we end the session, observe your mental, your emotional and your physical state. How are you feeling? आप कैसा महसूस कर रहे हो? Just observe everything. Are you feeling light? Are you feeling happy? Are you feeling stress free? Are you feeling energetic? Know yourself a little better today. Know your emotions a little better. Now, everyone, start rubbing your palms, placing your palm on your knee, on your eyes. Now, very slowly and gently, open your eyes and open your palms. Thank you so much, everyone, for joining this session. I hope this session works for each and every one of you. Thank you so much. So now today, everyone, I would like to share some